नमस्कार, उदय इंडिया में स्वागत है आपका। मैं अंशुमान आनंद और हम जानते हैं कि युद्ध की तकनीक लगातार बदल रही है। युद्ध के क्षेत्र में ड्रोन्स का इस्तेमाल बढ़ता जा रहा है और हम बहुत खुशनसीब हैं कि भारत एक बौद्धिक देश है। यहाँ पे बौद्धिक क्षमता की कमी नहीं है और हमारे देश में एक बेहतरीन ड्रोन बनाने वाले युवा लोग हैं जो कि अलग अलग तरीके के अलग प्रोडक्ट बना रहे हैं, ड्रोन प्रोडक्ट बना रहे हैं। इसमें से एक युवा हमारे साथ मौजूद है। व्हाट्स योर सर? सिद्धार्थ, आप अपने प्रोडक्ट के बारे में बताइए, जो ड्रोन हम देख रहे हैं। So this is a high altitude long endurance aircraft being designed for the Indian Army. So this will be operating at an altitude of about 4.5 kilometers, which can take off. It's altitude of 4.5 kilometers. It can take off at 4.5, operate at 5 kilometers with a 5.5 kilometer ceiling. So this can operate for about 6-hour endurance, and this is intended to operate in the Himalayan region, in the mountain region. So this is primarily a surveillance platform. So this is the first prototype that we have developed, and This is for surveillance only. correct. This is for surveillance only, and it will pass target information, target location information to the ground forces. लेकिन सर्विलांस ड्रोन्स में इतना बड़ा बनाने की क्या जरूरत है? इतना सर्विलांस ड्रोन देखते हैं नॉर्मली छोटा सा होता है और जो कि चुप के फोटो खींचता है और दुश्मन नजर रखता है। इतना बड़ा ड्रोन तो दुश्मन की निगाह में आ जाएगा। So the reason it has to be so big is because it has to operate at such high altitudes, and at the higher altitudes, the harder it becomes to fly because the oxygen is lower. There's lower air mass, so therefore it has to be bigger to operate for that long, and also it has to fly for 6 hours. So it has to carry enough fuel to fly for 6 hours. Therefore, they are so big. मैन्युफैक्चरिंग कंपनी कौन सी है इसकी? We are manufacturing it ourselves. New Space Research and Technologies here in Bangalore. न्यू स्पेस रिसर्च, बेंगलुरु की कंपनी है। जी. अच्छा, आगे बढ़ते हैं। अपने दूसरे प्रोडक्ट के बारे में बताइए जरा। So this is our Abhimanyu platform. It's a new Navy contract that has been awarded to us. So this is meant to operate in a swarm of 5 aircraft simultaneously with a manned platform. So for example, a pilot in a MiG-29 can, on a tablet, can control 5 aircraft simultaneously to execute a mission. So if there is a threat area where there is a surface-to-air missile system which can target the manned aircraft is not safe to enter. So in that scenario, the pilot will stay out of the missile range and send in these unmanned platforms. So these unmanned platforms will have different payloads. It can either have a kinetic payload, it can have a surveillance payload, it can have a EW payload. So based on the mission, the payloads will be selected for these platforms. तो आप दर्शकों को बता दें कि ये महाभारत की तरफ से अभिमन्यु को आगे भेज के चक्रव्यूह तोड़ा गया था। वैसे ही ये अभिमन्यु महायोद्धा नाम घातका, ये जो अभिमन्यु ड्रोन है वो आगे जाता है, दुश्मन की मिसाइल को चकमा देता है और पीछे से फाइटर जेट जाके हमला करता है। Am I right? बिल्कुल। तो इस शादी से आपका नाम आपने अभिमन्यु रखा है। इसीलिए हाँ, so it enters the Chakravyuh. It doesn't need to come out because it's an expendable aircraft. It will go hit the target and eliminate the threat in allowing the manned platform to come inside. मतलब अर्जुन का रास्ता साफ करने के लिए अभिमन्यु आगे जाएगा। बिल्कुल। तो अभी न्यू स्पेस के दो हम प्रोडक्ट हमने देखे और इसके बारे में सिद्धार्थ हमें बता रहे थे और हमारे साथ अब न्यू स्पेस के संतोष जी मौजूद हैं जो कि हमें बाकी प्रोडक्ट्स के बारे में बताएंगे। हमें प्लीज़ इसके बारे में, शेषनाग के बारे में बताइए सर। हाँ जी, ये है शेषनाग, हमारे सीरीज़ ऑफ वेपन्स में से सबसे जो बड़ा है, इसको जो 150 kg कैटेगरी का है, इसका नाम है शेषनाग 150, हमने जो नाम दिया है। ये रफली इसका स्पेसिफिकेशन ये है कि ये एक बार लॉन्च होने के बाद 5 घंटे का उसका एंड्योरेंस है। द रेंज जो कवर करता है वंस इट इज टेकिंग ऑफ 1000 किलोमीटर दूर तक जा सकता है। या तो आप उसको दूरी में जाने के लिए यूज़ कर सकते हैं, ना तो एक एरिया में मंडराने के लिए 5 घंटे के लिए मंडराने के लिए यूज़ कर सकते हैं। एंड्योरेंस टाइम 5 घंटे। 5 घंटे का एंड्योरेंस है। इसमें 25 से 40 kg का बारूद इसमें लगा सकता है। जो वेपन पेलोड कैटेगरी है वो 25 से 40 किलो का वॉरेड इसमें जो लगा सकता है। ठीक है, तो ये जेट पावर्ड है। सो ये आपने देखा होगा, ये ईरानियन जो शाहीन ड्रोन का है उनका सिमिलर कैपेबिलिटी रेंज में आता है। दैट्स द स्पेसिफिकेशन उसका जो है सिमिलर कैटेगरी का है और ये दुश्मन के इलाके में लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए तबाही मचाने के लिए काफ़ी रहता है। पेलोड क्षमता आपने कितनी बताई इसकी? 25 से 40 kg। 25 से 40 किलो गोला बारूद लेके जा सकता है शेषनाग हमारा। अच्छा, वैसे इसका नाम शेषनाग ही क्यों रखा आपने? हमारी कंपनी का ये जो लाइन ऑफ प्रोडक्ट्स है उसका डस्टने की जो कैपेबिलिटी है, बेसिकली वो प्रेसिशन अटैक कैपेबिलिटी को हमने जो नाम दिया है वो है शेषनाग।
ओके, मैं उस तरफ आपको लेके जाता हूँ जो मैं हम नीचे से लेके कहाँ तक, ये सबसे बड़ी मैंने बताया 150 केजी का। उससे पहले हमारे अलग अलग वेरिएंट के हम बता सकता हूँ कि छोटे से हम वहाँ तक कैसे पहुँचे जी। ठीक है। तो सबसे पहले आप देखिए जो सबसे जो नीचे जो दिख रहा है ये ब्लैक वाला ड्रोन जो आप देखिए, वैसे इसका नाम इशुक है, बट ये इसी कैटेगरी में आता है क्योंकि ये इसमें 1 किलो का बारूद है। ये ऐसे कोई भी क्वाडकॉप्टर से आप रिलीज कर सकते हैं और ये प्रिसिशन गाइडेड है, मतलब आप 3 किलोमीटर दूरी से एक टारगेट को देख इट्स अ कामिकाजे। हाँ, इस बॉम्ब है, ये प्रिसिशन गाइडेड बॉम्ब है। ओके, ये इतना एक्यूरेटली जाके आपने एक ड्रोन से आपने हवा से ड्रॉप कर लिया, उसके बाद उसको टारगेट को कोऑर्डिनेट तो ड्रोन से दे देते हैं कैमरा से देख के। दैट मींस ये शेषनाग में बिल्ट होता है ये। हाँ, ये शेषनाग कैटेगरी में आता है। इसका नाम इशुक है। इशुक का मीनिंग है एरो, तो प्रिसिशन गाइडेड वेपन फॉर ए स्मॉल माइक्रो म्यूनिशन। ये जो आप क्वाडकॉप्टर्स दिख रहे हैं, इनका जो लोड उठाने की जो क्षमता है उतना ज़्यादा नहीं होता। हाँ। तो इसमें हम बारूद का मतलब आपको अटैक करने का जो कैपेबिलिटी है उसमें बढ़ा रहे हैं। आप जो पीछे देखिए, अब पीछे जो दिख रहा है, स्कॉट टॉपिक में बताइए प्लीज। अच्छा, ये बेलुगा करके हमारा एक और प्रोडक्ट है। ये हमने इंडियन आर्मी की ऑलरेडी सप्लाई किया हुआ है। ये बड़ी बर्ड है, इसमें इंजन लगा हुआ है, आईसी इंजन है, इंटरनल कंप्रेशन इंजन है, बैटरी बैकअप के लिए है। और ये जो नीचे जो दिख रहा है छोटी सी जो ड्रोन है, इसका नाम है मैकरल। इसमें आप 200 ग्राम के वॉरहेड लगा सकते हो और आप दुश्मन के सामने जाके आपको अगर कोई हाई वैल्यू टारगेट है जिसमें आपको डिस्ट्रॉय करना ही करना है, मतलब आपको अब ये नहीं मतलब है कि कितना बारूद डालना है, लेकिन उसमें जाके हिट करना ही जरूर है। तो इस छोटे चाइल्ड ड्रोन को मैकरल को आप रिलीज़ कर सकते हो। एक बार रिलीज़ करते हो तो ये तो पक्का ड्रोन है, तो इसको आप उड़ा के जिस टारगेट पे आपको भेजना है वेरी एक्यूरेटली यू कैन सेंड इट देयर एंड किल इट। ठीक है। सो वाइल ये दिस इज अ क्वाडकॉप्टर बाय इटसेल्फ, मतलब आप इसको उड़ाना है तो इसको अलग से भी उड़ा सकते हो। बढ़िया, तो आगे बढ़ते हैं हम। ये जो दिख रहे हैं, ये मैंने जो आपको बताया ना इशुक जो है, इशुक को हम कैसे यूज़ करेंगे वो दिखा रहे हैं। ये बड़ा सा ड्रोन है, ये ऐसे 4 लेके जा सकता है। देखिए इस ड्रोन में 4 इशुक लगे हुए हैं, बिल्कुल प्रिसाइज बम ड्रॉप करने के लिए ये बना हुआ है। इशुक का मतलब जैसे संतोष जी ने बताया कि एक तीक्ष्ण बाण, एक तीखा तीर जो कि ठीक निशाने पर जाके चोट पहुंचाता है। और देखिए भारत में जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं वो बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं, बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट बना रहे हैं। क्या कॉप्टर में जब ये इशुक लग जाता है तो ये ऐसा ही दिखाई देता है। हम आगे बढ़ेंगे तो संतोष जी से और ज्ञान वर्धन कराएंगे अपना। संतोष जी हमें और बताइए और क्या क्या बनाते हैं आप। तो अभी हम शेषनाग के जो हायर कैटेगरी में आते हैं, ये है शेषनाग 10, शेषनाग 10। ये 10 इसलिए क्योंकि इसमें 10 kg का टोटल वजन है इसका। इसमें 1 किलो का बारूद है। ये वो जो ट्यूब दिख रहा है आपको पीछे ग्रीन कलर के, ये इसके अंदर से लॉन्च होता है। ये आप देखिए, ये हरे रंग का एक ट्यूब है जिसके आगे रेड कलर का नोजल है, नोज है, शायद वही लाल वाला इसका बॉम्ब है। एग्जैक्टली। तो इसमें वॉरहेड जिसका रेड कलर का है, आप बड़े गौर से देखिए। संतोष के बारे में बताइए प्लीज। ये पूरी चीज़ें पूरी तरह आप जो दिख रहे हैं ना, ये सारे फोल्ड हो जाते हैं, उसके अंदर चले जाते हैं। बाहर निकलते तो ये सारे खुल जाते हैं। ये 10 किलोमीटर की दूरी तक जा सकता है, वहाँ पे 15 मिनट के लिए मंडरा सकता है। और मैंने जैसे बोला कि 1 किलो का इसमें वॉरहेड है। इसमें आप नीचे देखिए एक रेंज फाइंडर भी है। ये जो प्रिसाइज आपको जो टारगेट करना है, तो लेज़र के द्वारा लेज़र के द्वारा वो टारगेट का दूरी जो है माप कर सकता है और उसको जाके प्रिसाइज अटैक कर सकता है ना। तो ये खासियत इस संतोष जी ने बताया, खासियत इसकी ये है कि पूरी तरह से फोल्डेबल है और एक पाइप में आ जाता है। इसको छुपा के बड़े आराम से ले जाया जा सकता है। मेरे ख्याल से ये मैन हैंडल भी किया सकता है। बिल्कुल 10 kg है इसका टोटल वजन ही 10 kg है, तो आराम से एक आदमी अपने पीछे डाल के घूम सकता है। और जैसे आपने कहा कि ये किसी भी टैंक में, व्हीकल, जीप में, कहीं पे भी जाके उसको फिक्स कर सकता है ना। तो हम इस प्रोडक्ट के बारे में आपको न्यू स्पेस के और प्रोडक्ट के बारे में हमने बताया। और इसी तरह से जो रक्षा संबंध नए नए हो रहे हैं, जो प्राइवेट प्लेयर्स आ रहे हैं, हाँ, कोई आगे देते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।